Hello student, welcome to my channel Ask Your CA by CA Minhaj. In last 3 video of chapter 1 Introduction to Partnership Subject Account of class 12th, we had discussed the theory part. Now in this video, we'll start with the practical sum from the textbook illustration 1, 2, 3. Hi friends, welcome back. In this chapter, Introduction of Partnership Firm, chapter number 1, Subject Account. In last lecture, we have discussed the theory parts. This chapter contains 5 marks as we all know. MCQ 1 marks. We have already discussed what MCQ will be covered in the board exam. One sentence we have already covered in the last lecture. Now 3 marks जो सम रहेगा. Today in this lecture we will discuss all the important question for 3 marks, or we will solve it out also. Now let's start with the lecture. 3 marks sum. Come to page number 14, illustration 1. Page number 14, illustration 1. Before starting illustration 1, in board exam जो 3 marks का सम आएगा, इसका important question कौन से हैं? illustration 1 to 11 नोट डाउन कर दो. 3 marks का जो सम रहेगा वो एक बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी illustration 1 to 11. और एक्सरसाइज में सम नंबर 1 to 11, एक्सरसाइज में सम नंबर 1 to 11 ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. ये नोट डाउन कर देना. 3 मार्क्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इलस्ट्रेशन 1 to 11 एंड एक्सरसाइज में सम नंबर 1 to 11. यू कैन नोट डाउन द पेज ऑल्सो. इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 14 एंड अप टू इलस्ट्रेशन 11. एंड फ्रॉम exercise it will start. From exercise sum number 1 to 11 and page number will be page number 3030. Sum number 1 to 11. Now let's start with illustration 1. Illustration 1, come back to page number 14 with illustration 1. First of all, I will read the question. Hiral withdraw 500 in the beginning of every month. Hiral एक पार्टनर है, वो विड्रॉ करता है 500 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. हर मंथ की फर्स्ट डेट को 500 रुपीज विड्रॉ करेगा हिरल. इफ 10% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग, और जो विड्रॉ कर रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10%. अगर हिरल 500 हर मंथ की फर्स्ट डेट को विड्रॉ कर रही है तो इसको इंटरेस्ट लगेगा 10%. दैट इज ऑल्सो पर एनम. PA means per annum, yearly. Determine annual drawing and interest on drawing. हमको फाइंड आउट करना है एनुअल ड्राइंग, पूरे साल में कितना विड्रॉ किया वो. और सेकेंड क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं हमको. तो दिस क्वेश्चन विल बी 3 marks in your board exam. Now let's start with solution. First question is annual drawing. Month 500, monthly withdraw 500, तो yearly will be annual drawing equals to 500 monthly. कितने मंथ होते हैं? 12 month multiplied by 12, that comes to rupees 6,000. That's all. Now what we have to find out? Interest on drawing.
Now interest on drawing, you have to pay attention. Interest on drawing, formula is PNR upon 100. हमने लोअर क्लासेस में देखा हुआ है ये फॉर्मूला PNR upon 100. What is P? P stand for principal amount, N stand for number of years, and R stand for rate of interest. Now P, principal amount is 500. N means beginning of every month है, तो हमको लेना है 78 डिवाइड बाई 12. वो कैसे 78 डिवाइड बाई 12 आया वो हम डिस्कस करेंगे अभी. और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो वी विल मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइड बाई 100. नाउ सी हाउ दिस 78 डिवाइड बाई 12 कम्स. लुक ओवर हियर. अप्रैल, May, June, July, August, and so on up to March. Now see, for example, in the year 1718, हिरल ने 500 विड्रॉ किया हुआ है, तो he will withdraw on 1st April 500 rupees. He will in May, on 1st May he will withdraw 500. क्यों? बिगिनिंग लिखा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो बिगिनिंग मीन्स फर्स्ट डेट. जून में 15,500, जुलाई में 16, जुलाई में 17,500, अगस्त में 18,500, 18 को इसने विड्रॉ किया 500 एंड सो ऑन. नाउ सी, अप्रैल में जो फर्स्ट डेट को विड्रॉ किया, तो अप्रैल में हिरल ने कितने मंथ तक पैसे यूज किए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अप टू मार्च. ही हैज़ यूज दिस 500 फॉर 12 मंथ. ऐसे मई में ही हैज़ यूज्ड 500 फॉर 11 मंथ. मई से चालू करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. फिर ही हैड विड्रॉ यूज दिस 500 फॉर 10 मंथ, दिस फॉर 9 मंथ एंड दिस फॉर 8 मंथ. अभी ये टोटल लगाएंगे तो यू विल गेट 78. तो दिस विल बी 78. तो दैट विल बी द आंसर विल बी 325. फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन, अगर हिरल हैज विड्रॉन एट द बिगिनिंग की जगह पे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा होता, बिगिनिंग की जगह पे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हाउ वी विल सॉल्व आउट. ये 78 अगर बिग एट द एंड लिखा है तो 78 की जगह पे आ जाएगा 66 डिवाइड बाई 12. कैसे 66 आया हम फिर से देखेंगे. अप्रैल में एट द एंड ऑफ एवरी मंथ दैट कम्स टू 30th अप्रैल 500 विड्रॉ किया. मई में 31st मई ही हैज़ विड्रॉ 500. जून में 30th जून में ही हैज़ विड्रॉन 500. जुलाई में 31st जुलाई 500 एंड सो ऑन. तो अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ यूज कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो जो अप्रैल में जो विड्रॉ किया 500 वो कितने मंथ तक यूज किया? अप्रैल तो काउंट नहीं होगा क्योंकि लास्ट डेट है. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अप टू मार्च, दैट विल कम्स टू 11 मंथ. फिर मई लास्ट डेट को विड्रॉ किया है, मतलब मई तो काउंट होगा नहीं इंटरेस्ट में, तो जून, जुलाई से फिर 10 मंथ आएगा, ऐसे 9 मंथ, ऐसे 8 मंथ एंड सो ऑन. अगर इसका टोटल लगाएंगे तो आपको 66 मिलेगा. तो ये 66 डिवाइड बाई 12. तो क्या सोचना है, अगर क्वेश्चन में विड्रॉवल की अमाउंट बिगिनिंग होती है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है, तो पी एन की जगह पे हम लेंगे 78 डिवाइड बाई 12. और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा है, एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा है, तो हम लेंगे 66 डिवाइड बाई 12. ये दो चीज़ नोट डाउन कर लो. बिगिनिंग लिखा है तो 78 डिवाइड बाई 12, एट द एंड लिखा है तो 66 डिवाइड बाई 12. तो हमारे जो इलस्ट्रेशन 1 था वो बिगिनिंग था, तो हमने लिया 78 डिवाइड बाई 12. एग्जाम में एट द एंड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा,
एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इसका मतलब होता है हर महीने की लास्ट डेट को। बिगिनिंग का मतलब होता है हर महीने की फर्स्ट डेट को। तो अगर बिगिनिंग है तो 78 डिवाइड बाई 12, अगर एट द एंड है तो 66 डिवाइड बाई 12 एंड सो ऑन। और आपका सॉल्यूशन मतलब अकॉर्डिंगली यू विल गेट दी आंसर। नाउ वी विल मूव फॉर इलस्ट्रेशन 12. Now come to illustration 12. Again, nice question, illustration 12. First we will discuss, first we will read the question clearly. Illustration 12, page number 15. Hansa, Hitesh and Vijay are the partner of a firm. There are three partners, namely Hansa, Hitesh and Vijay. Their capital proportion is 3:2:1. कैपिटल प्रपोर्शन, कैपिटल के प्रपोर्शन के ऊपर राउंड करो, कैपिटल प्रपोर्शन इज 3:2:1. हितेश इज एंटाइटल टू रिसीव कमीशन 10%. हितेश को मिलेगा कमीशन, कितना मिलेगा? 10%. किसके ऊपर मिलेगा? ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर रिडक्शन ऑफ सच शेयर. हितेश इज अ पार्टनर, ही विल रिसीव कमीशन 10%. 10% किसके ऊपर? हितेश को मिलेगा कमीशन, कितना मिलेगा? 10%. किसके ऊपर 10%? नेट प्रॉफिट के ऊपर. नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर डिडक्शन वाला, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर. आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर का मतलब होता है कि इसका कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट मिला इसके ऊपर 10%. आफ्टर डिडक्शन का क्या मतलब होता है? इसको कमीशन जो मिलेगा इसका वो कमीशन प्रॉफिट में से माइनस करके जो प्रॉफिट बचा इसके ऊपर 10% है. फिर आगे रीड करते हैं. व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश. हितेश को कितना मिलेगा वो क्वेश्चन पूछा है. आगे रीड करते हैं. व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,65,000 एट द एंड ऑफ ईयर. जब प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट है 1,65,000, तो हितेश को व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश. हितेश को कितना अमाउंट मिलेगा वो हमको फाइंड आउट करना है. तो हितेश को क्या मिलेगा? फर्स्ट कमीशन मिलेगा. इधर लिखते हैं आंसर. हितेश विल रिसीव क्या क्या मिलेगा हितेश को? एक तो कमीशन मिलेगा, दूसरा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अंदर इसका जो प्रपोर्शन होगा, प्रॉफिट का प्रपोर्शन होगा वो भी हितेश को मिलेगा. तो वी विल राइट ओवर हियर डिविजिबल प्रॉफिट. क्वेश्चन में पूछा है व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश. हितेश को कितना मिलेगा? तो हितेश को एक तो कमीशन मिलने वाला है, दूसरा प्रॉफिट में से इतना हितेश का जो शेयर होगा वो मिलेगा. तो हम पहले कमीशन की फिगर फाइंड आउट करेंगे. तो कमीशन ऑफ हितेश को कितना कमीशन मिलने वाला है? 10%. किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर. 1,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 10. ठीक है, 10% है तो परसेंटेज को निकाल देंगे तो नीचे 100 लगाना पड़ेगा, नीचे 100 होगा. और जब भी आपको आफ्टर डिडक्शन लिखा है, आफ्टर डिडक्शन कहीं पे भी लिखा होगा हो, तो हमको 110 की जगह पे 100 की जगह पे 110 लगाना है. कैसे 110 आया? 100% निकाला तो 100 आया, प्लस जो जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10, दैट विल बी 10, दैट कम्स टू 110. फिर से अगर आपको क्वेश्चन में 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ये 1,65,000 है ना जो प्रॉफिट है, मल्टीप्लाइड बाय आफ्टर डिडक्शन लिखा हो तो इधर 110 आएगा. कैसे 110 आएगा? 100 प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, जो रेट ऑफ कमीशन है वो 10, तो 10 अगर 8 होगा तो इधर 108 आता, अगर 5% होगा तो 105 आता. तो इसका जो भी आंसर बनता है वो आएगा 1,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100, दैट कम्स टू 15,000. तो हितेश को पहला कमीशन मिलेगा, दैट विल बी 15,000. नाउ ये प्रॉफिट है बिफोर कमीशन, तो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट
आफ्टर कमीशन कितना होगा, 1,65,000 में से 15,000 कमीशन हितेश का माइनस करेंगे तो हमको मिल गया डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट किसका है, 3 पार्टनर का। कौन कौन है 3 पार्टनर, हांसा, हितेश एंड विजय। तो ये 1,50,000 तीनों को मिलेगा। किसको मिलेगा, हंसा को, हितेश को और विजय को। तो हमको खाली हितेश का फाइंड आउट करना है, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने थियरी में देखा था कि डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। कौन सा रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। इधर कहीं पे भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है, इधर 3:2:1 दिया है, लेकिन वो कौन सा रेशियो है, कैपिटल रेशियो है। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हमने थियरी में देखा था कि अगर इफ देयर इज एब्सेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इक्वली। अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है तो डिविजिबल प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हितेश को कितना मिलेगा, तो इक्वली मीन्स व्हाट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वली 1:1:1। अंदर क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है लेकिन वो कैपिटल रेशियो है, हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्वेश्चन में नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो विल बी 1:1:1। तो हितेश शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, हितेश शेयर ऑफ प्रॉफिट equals to 1,50,000 equally means हितेश को 1 divide by 1 + 1 + 1 that is 3, that comes to 50,000। तो हितेश को कितना मिलेगा, 50,000 in the form of divisible profit। तो टोटल हितेश will receive 65,000। this will be the answer, ये हमारा आंसर रहेगा। हितेश will receive 65,000। गॉट इट। फिर से ये रिवाइज कर दे, हमको क्वेश्चन में पूछा कि हितेश को मिलेगा 10% कमीशन, हितेश को मिलेगा कमीशन किसके ऊपर, 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर। क्या लिखा है, आफ्टर डिडक्शन। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,65,000। हितेश को टोटल कितना मिलेगा, तो हितेश को एक कमीशन मिल रहा है, एक प्रॉफिट का इसका शेयर मिल रहा है। तो हमने कमीशन कैसे फाइंड आउट किया, कमीशन ऑफ हितेश इक्वल्स टू टोटल 1,65,000 प्रॉफिट है, 10% ऑन प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100 आना चाहिए, लेकिन 110 क्यों आया। अगर क्वेश्चन में आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर लिखा हुआ है तो कैसे करना है, 100 प्लस जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जितना रेट ऑफ कमीशन है, सॉरी रेट ऑफ कमीशन 10% है तो 100 + 10 दैट विल बी 110। अगर क्वेश्चन में 8% है तो 100 + 8 इक्वल्स टू 108। अगर 12% है तो 100 + 12 दैट इज 112। then you will get, if you solve out you will get the answer as 15,000। तो कमीशन की अमाउंट वी गॉट एज 15,000। व्हाट विल बी, दूसरा चीज हितेश को क्या मिल रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट ये प्रॉफिट था लेकिन इसके अंदर कमीशन माइनस नहीं किया हुआ है, तो हम पहले डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट था इसमें से कमीशन माइनस किया और ये 1,50,000 आया। दिस डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्वेश्चन में नहीं था, इसके लिए अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है तो वी विल टेक एज इक्वली। तो इक्वली मीन्स 1:1:1, 3 पार्टनर थे। तो हितेश को मिलेगा 1,50,000 into 1 divided by 3 that is 50,000, that comes to 50,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट हितेश शेयर विल बी 50,000, तो टोटल हितेश विल गेट 65,000। गॉट इट। नाउ इलस्ट्रेशन, दिस विल बी इलस्ट्रेशन ट्रू, illustration 2। now let's move to illustration 3। illustration 3 पेज नंबर illustration 3 पेज नंबर 1616, पेज नंबर 1616। first again we will read the question clearly। profit and loss sharing ratio of Jayesh, Suresh and Pankaj is 6:2:3। कौन सा रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, P&L रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। 3 पार्टनर का जयेश, सुरेश एंड पंकज, दैट कम्स टू 6:2:3।
अ मैनेजर, क्या लिखा है, अ मैनेजर a manager has received his commission of 6600. एक मैनेजर था, मैनेजर कमीशन 6600, एक मैनेजर को कमीशन मिला था 6600। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, और ये कमीशन कैसे कैलकुलेट किया हुआ था, 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। तो मैनेजर को कमीशन मिला था 6600, और ये उन्होंने कैलकुलेट कैसे किया था 6600, ये कमीशन था 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन। उनके पास जितना भी प्रॉफिट था आफ्टर डिडक्शन वाला, इसके अंदर से 10% मल्टीप्लाई किया होगा, इसके बाद उनको 6600 अमाउंट मिला था। Got getting? Now see what to be find out. Ascertain means calculate. Calculate distribution of profit among the partner. हमको फाइंड आउट करना है, 3 पार्टनर है, जयेश, सुरेश एंड पंकज। हमको फाइंड आउट करना है जयेश को कितना प्रॉफिट मिलेगा, सुरेश को कितना प्रॉफिट मिलेगा, पंकज को कितना प्रॉफिट मिलेगा। हमको ये तीनों का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। हम पहले ऐसे सोचेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ होगी तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पास 2 चीज़ होना ज़रूरी है, एक तो पहले प्रॉफिट होना चाहिए, हमारे पास प्रॉफिट होगा, और अगर पीएनएल रेशियो होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिंपल। तो हमारे पास पीएनएल रेशियो तो है, हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमको हिंट दिया हुआ है मैनेजर का कमीशन। तो देखो मैनेजर को कमीशन कितना मिला, 6600। ये 6600 कैसे आया, 10% से आया। तो देखो 6600 में, सॉरी 10% में अगर इसको डिविजिबल प्रॉफिट या फिर वी कैन राइट, अगर इसको 10% में 6600 अमाउंट मिल रहा है तो टोटल कितना होगा, 100 में, टोटल विल बी 100 ऑब्वियसली। हाउ मच, द 10% में 6600 मिल रहा है तो 100 में हाउ मच, तो वी विल गेट डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 क्रॉस, यू नो दैट 100 मल्टीप्लाइड बाय 6600 डिवाइड बाय 10, दैट कम्स टू 66,000। ये मिला हमको टोटल डिविजिबल प्रॉफिट। फाइंड आउट क्या करना है, जयेश, सुरेश एंड पंकज जो पार्टनर है उनको कितना कितना मिलेगा। तो हमारे पास 2 चीज़ होना जरूरी था, डिविजिबल प्रॉफिट, पीएनएल रेशियो। नाउ दोनों चीज़ अवेलेबल है, वी विल सिंपली फाइंड आउट जयेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 66,000 मल्टीप्लाइड बाय, जयेश का शेयर कितना है 6 डिवाइड बाय में टोटल लेंगे, 6 + 2 8 + 3 11। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी अवर आंसर फॉर जयेश, एंड दैट कम्स टू 36,000 रुपीज़, 36,000। ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे सुरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट इज 66,000। सुरेश का शेयर कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय टोटल 6 + 2 8 + 3 11, दैट कम्स टू रुपीज़ 12,000। नाउ पंकज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू अगेन 66,000 मल्टीप्लाइड बाय, पंकज का शेयर है 3 डिवाइड बाय अगेन 6 + 2 + 3 दैट विल बी 11, दैट कम्स टू रुपीज़ 18,000। सिंपल। तो कैसे किया ये सम, क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 6:2:3। एक मैनेजर था, इसको कमीशन मिला था 6600। वो लोगों ने मैनेजर का कमीशन 6600 कैसे फाइंड आउट किया था, 10% नेट प्रॉफिट के हिसाब से 6600 मिला था। हमको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में कि जो 3 पार्टनर है दैट इज जयेश, सुरेश एंड पंकज, उनको कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा।
तो कितना कितना प्रॉफिट मिलने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ होना ज़रूरी था, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो तो था, लेकिन हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट नहीं था। तो हमने हिंट लिया मैनेजर की कमीशन के हिसाब से, बाय टेकिंग द बेस ऑफ मैनेजर कमीशन वी विल गेट डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे मिलेगा? 10% जो मैनेजर का कमीशन था, 10% में 6600 अमाउंट है, तो 100% में कितना है? तो कैसे कैलकुलेट किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमको 66,000 मिला। नाउ वी हैव टू फिगर, दैट इज 66,000 डिविजिबल प्रॉफिट and profit and loss ratio is 6:2:3. Now we have simply distributed among the partner. जयेश का शेयर था 6, सुरेश का शेयर था 12, पंकज का शेयर था 3. So we have simply distributed this divisible profit in among the partner.